कहानी, यहाँ रात नहीं होता तेरे वहम को भगा दी। लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दी। क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तो नकली वाला मर्द मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गरम मेरा कलम। क्यों इतना बेशरम, काम का वो आज जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं पल नहीं। दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत। भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर। सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैद। दादागिरी बंद कर तू चल तो संभल कर, खुद को तो ढूंढ के तू उसको अमल कर। नकली गुरूर उसको मसल कर, नकली वजूद उसको कुचल कर। जरा कम कर शानगिरी कम कर, जरा कम कर लुखेगिरी कम कर। ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर, गुरूर ये खत्म कर। जरा कम कर शानगिरी कम कर, जरा कम कर लुखेगिरी कम कर। ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर, गुरूर ये खत्म कर। भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर। सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैद। भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग भाग भाग।
Okay, guys, welcome everyone. Welcome to your digital marketing class with Zeros Learning. I'm your host, Ramdev Singh, and your trainer in this journey. I hope you all are doing well. Okay, so let me know in the chat box if you are able to hear my voice. Type yes in the chat box if you are able to hear my voice. And welcome to this amazing session in this 2 hour in-depth session, guys. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay, awesome, guys. Okay, I can see some new faces here, new participant here. Okay, so whoever is new, type new in the chat box. Those who have not attended any class, type new in the chat box. Okay, Rahul is new, Rishabh Lakshmi is new, Soumya Mishra is new, and Ruchi is new. Okay. So today we have 4 students. Those are completely new, and okay, so you may think that something. When I will teach something on top of your head. So I will keep all the things very simple as it is. Okay, and give my best. Okay, guys. So cooperate with me, and I will take recap sessions. And there are some recordings of our previous session is available on our private Facebook group. So you can guys go and watch those topics as well. Also, you can comment in the chat in the comment section if you have any doubts also. Okay, so shall we start, guys? Type start in the chat box and I will start the session. Okay. Okay. Awesome, guys. Amazing. So now I'm going to share my screen. I hope you guys have all also enjoyed the music in the beginning. I hope you all are guys able to see my screen. Yeah. So in the last in the last session we studied about landing pages. Okay, so all of the 4 new people we have studied. I will give you a small recap so that you can guys relate with what I have taught. Okay, so landing pages. So I was talking about landing pages. So what are landing pages? Landing pages are basically landing pages. Let me show you a simple example. Then I think you guys can relate. Okay, so let me search for IIT coaching. Okay, you can search for anything. You can search for any service related thing, and then you will see some Google ads. Okay, so the search results onto which ad is written. It means these ads are paid ads. Okay, so if I open this link, JE 2020, and if I visit this page. Okay, guys, a simple question to all the students who have attended my sessions and those who are not. Is this is a website or a landing page? Let me know in the chat box. Is this a website or landing page? Just a quick session. Just a quick quick test. Okay, is this a landing page? Okay, Ruchi said website. Okay, okay. What about everyone else? Is this a landing page or a website? Okay, Rahul said it's a landing page. Gaurav said landing page. Soumya said landing page, landing page. Okay. Okay. Huh. So yeah. So so Ruchi, this is not a website. Actually, it is a website. But the thing that you are experiencing is this page is known as, in terms of digital marketing, it is known as landing page, because this page is specifically asking for your details. Okay, this page is asking for your details so that this business can get a lead. Okay, so this business can get a lead, so that's why they have made a simple landing page onto which they have put this form and this image and this headline and this some description and what are the all the features you will get if you enroll in their NEET crash course. Okay, so this time whenever we visit this type of pages, these pages are known as landing page. Okay,
Okay, so all the newcomers and all the previous students, are you guys do you have any doubt regarding landing page or website? Landing page is a part of website, okay, but not every website could be a landing page. Okay, okay, Rishabh. Okay, Rishabh. So this is a landing page. Also, when you watch my previous sessions, you will get a complete idea on. Okay, or also you can also search. Okay, okay. Let me show you another example. Let me show you another example. Okay, okay, guys. Tell me, is this a landing page or website? Is this a landing page or website? Okay, Ruchi. Is this a landing page or a website? This is to, I'm asking to all of you guys. Is this a page, a landing page or website? Okay, Gaurav Shah said website, and Soumya Mishra said website. Okay, website. Okay, Rahul. Jasmine said landing page. Okay, Arpit landing page. Okay, okay. So this page is actually a landing page, because here, as you can see, there is no navigation menu. Okay, on top of the page there is no navigation menu like home page, about us page, services page, contact us page. Okay, this page is particularly made to make users action. Okay, so this page actually wants me to click on enroll today. Okay, so when I click on enroll, I will go to a payment gateway, and if all the things that are written on it, all the things that are written on it are written because it wants to make me convinced, okay, about their offer. So this person, okay, so this person has made this complete landing page, in which he has shared that join me for my easy understand online course to get command over your gold mine of decision making. That's your data. Okay, so he is selling a course, okay, related to Google Sheet and Excel. Okay, so here he has mentioned that all the key points of his course, and then again there is a button. Okay, also the key points, then there also a button. Okay, so as you can guys can see, this is a example of a landing page. Okay, also he has mentioned all the modules in his all the modules in his course, on his online course. Okay, okay, so this is a complete landing page. Also you can see that this page has no footer. Okay, I hope you guys are aware of footer. What is a footer in a website? So footer is basically, footer and header are the components of a website that are common to each pages. Okay, doesn't matter which page it is. For header and footer is always common. Okay, so I hope now you guys are totally aware of what are landing pages and what are their motive. Okay, type yes in the chat box. Yes in the chat box if you guys have no doubts regarding that. Okay. I do not want to start with a doubt. If you guys have any doubt, you can just unmute yourself and ask. Okay. If anybody, okay, any newcomers, latecomers, anyone, if you guys have any doubt, you can just unmute yourself, or I'm proceeding next. Okay. So I have shown you what is a landing page. Okay. Difference between a landing page and website. I have shown you that landing page do not have a navigation menu or a footer menu. Okay. Landing pages are action driven page. So what are the purpose of landing pages? The whole purpose of landing page is that giving direction to your visitor, customer or user. Okay, so by creating a landing page, okay, and then when we run paid ads for it, for instance, okay, so we will give direction to our visitor, customer or users. Also also we will minimize the distraction, so that our visitor do not get confused in many things, okay, about our offering. No navigation menu, you make it easy, you make it to influence the visitor. Okay, this point is understood. I've shown you the example of landing pages. Okay, also now
Okay. Now I'm going to show you what are the various tools. What are the various tools are available? Okay. Tools to create landing page. First of all, पहले तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि कौन से फ्री टूल्स हैं. ओके, फ्री टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और पेड टूल कौन कौन से अवेलेबल है. सो देयर आर सम पेड टूल्स एंड फ्री टूल्स. सो अगर हम फ्री टूल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम फ्री टूल्स की बात करें, अगर आपको या किसी को भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इससे HTML पेज बना सकते हो, ठीक है, अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो. दूसरा है वर्डप्रेस. ठीक है, आप वर्डप्रेस का यूज करके बना सकते हो. वर्डप्रेस विद एनी पेज बिल्डर. ओके, पेज बिल्डर. इसमें हम जा जाते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो मैंने अभी आप तक जो पेज बिल्डर यूज करना सिखाया है वो है एलिमेंटोर. ओके ओके, अब मैं पेड टूल्स पे आता हूँ कि अगर आपको एकदम से भी मतलब HTML नहीं आता, वर्डप्रेस भी नहीं आता, ठीक है, देयर आर सर्टेन पेड टूल्स अवेलेबल, जैसे कि leadpages.com. ठीक है, clickfunnels.com. okay, and let me show you some view of this website, lead pages. Okay, so this is a website of leadpages.net. यहाँ पर आप क्या करते हो, आप डोमेन जब परचेज कर लेते हो उसके बाद में यहाँ पर आप लैंडिंग पेज बनाते हो और लैंडिंग पेज को अपने डोमेन से कनेक्ट कर देते हो. ठीक है, तो यहाँ से आपका लैंडिंग पेजेस बनते हैं. ओके, मैं और दिखाता हूँ. clickfunnels, ठीक है, clickfunnels.com. यहाँ पर भी आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग का लीड लैंडिंग पेज बनते हैं. बहुत ही अच्छे लैंडिंग पेज बनते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है. मतलब ये करीबन $250 अ मंथ. ठीक है, तो ये मतलब इतना अफोर्डेबल नहीं है सभी के लिए. ठीक है, मगर जो इसेंस है, ठीक है, इट मींस कि जो मोटिव है, ठीक है, वो है कस्टमर को लाना, ठीक है, और उसको एक्शन ड्रिवन कोई चीज एक्शन कराना. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज होती है जो वहां पर होती है. सिंपल. सो यू कैन गेट द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स. ठीक है, टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, मगर गोल सबका एक ही रहेगा. तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी. और भी मैं आपको दिखाता हूँ. ClickFunnels सिमिलर. ओके, तो ClickFunnels की तरह हमारे पास में और भी हैं, जैसे कि ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार लैंडिंग पेज. ओके, हमारे पास में unbounce.com भी है. ठीक है, और हमारे पास में igloo पेज बिल्डर है. ठीक है, unbounce.com से भी आपके लैंडिंग पेजेस बनते हैं. ठीक है, उन लैंडिंग पेजेस से आप फॉर्म्स डाल सकते हो. ठीक है, उन फॉर्म्स को डालने के बाद में आप वहां से लीड्स या फिर कोई सेल करना चाहते हो, आप डायरेक्टली वो सेल कर सकते हो. ओके, सो और ये हमारे पास में अनबाउंस हो गया. मैं इस माइंड मैप को भी आपको दे दूंगा. ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ igloo, IGL, igloo हो गया. और था हमारे पास में unbounce.com. एंड ये सब हमारे पेड टूल्स हैं. ठीक है, इसमें आपको मंथली इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मंथली, या फिर जो ये इनका इस तरह का भी सब्सक्रिप्शन होता है, मंथली, एनुअली. ठीक है, या फिर वन टाइम अगर इनमें ऑफर चल रहा होता है तो वो चीज भी आप ले सकते हो. ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पेड टूल्स बताए. ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में. ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम जो लैंडिंग पेज बनाना सीखा था, वो सीखा था एलिमेंटोर से. ठीक है, वहां से भी वही चीज बनती है जो इन सब चारों इन पेड टूल से बनती है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज हम ये जो ये पेड टूल्स है तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा देंगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो यहाँ तक सभी लोगों को चीजें क्लियर है. यहाँ है ना, HA और NA. So Rishabh said, so we can create landing page in the form of a blog also, right? No, blog is a complete different thing. blog है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं. ठीक है, और लैंडिंग पेज सिर्फ एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए होता है.
ओके, अब देखो हम लोग का जो गोल क्या होता है, ठीक है, पर्पस मैंने बता दिया था आपका कि क्या एक चीज मैं लिखता हूँ यहाँ पर, गोल ऑफ लैंडिंग पेज। ओके, तो बहुत तरह के लैंडिंग पेज होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो एक पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं लैंडिंग पेज के गोल्स में कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ होते हैं लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है, लीड जनरेट करने के लिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लीड चाहिए, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हो खरीदने के लिए, तो आपको लीड चाहिए। तो उसके लिए आप लैंडिंग पेज बनाओगे, उसमें आप अपनी सारी चीजें लिखोगे कि ये क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह की इसमें बेनिफिट्स है, क्या लोकेशन है, क्या क्या एमेनिटीज है, ठीक है, और किस प्राइसिंग का है, क्या रेंज का है। तो आप जब आप उसका एड कैंपेन चलाओगे, ठीक है, पेड एड चलाओगे, ठीक है, तो उसमें या फिर अपने ही नेटवर्क में आप शेयर करोगे उस वेबसाइट की लिंक को, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली यू आर ऑफरिंग, ठीक है। तो वहां से हम लोग पहला गोल हो गया कि हम लोग लीड जनरेट करने के लिए करते हैं, दूसरा हो गया इसको हम लोग लीड मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखो लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड मैग्नेट क्या होता है, जब भी हम लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है, फिशिंग करते हैं तो सब लोग फिशिंग नहीं करते होंगे, ठीक है, पर जब भी कोई फिशिंग करता है तो उसमें अपने कांटे में, ठीक है, एक क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा जानवर, ठीक है, जानवर नहीं, कीड़ा, ठीक है, छोटा सा कीड़ा वो उसमें लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ताकि ताकि जब कोई मछली आए, ठीक है, मछली उसके लालच में आएगा, ठीक है, मछली उस कीड़े के लालच में आएगी, ठीक है, और उसका जो मुंह है वो कांटे में फंस जाएगा, ठीक है। तो हम ये, और ये चीज क्या है, ये चीज को हम लोग कहते हैं लीड मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 18 तरीके बताऊंगा, ठीक है, 18 तरीके बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी फिट कर सकते हो, ठीक है, आप एक हेल्दी इंसान बन सकते हो, मैं 18 तरीके बताऊंगा एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो मैंने ऐसे ई बुक बनाई, ई बुक बनाने के बाद में मैंने क्या किया, मैं उस चीज को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को मैं बोल रहा हूँ फ्री में, सब लोग फ्री में ले लेंगे। तो हो सकता है जिन लोगों का इंटरेस्ट हो उस चीज में, तो वो लोग आके परचेस करेंगे। अब उसके बाद में मेरे पास क्या होगा, जब वो परचेस करेंगे तो मैं बोलूंगा कि मुझे आपकी डिटेल चाहिए, मुझे आपका ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, नाम चाहिए। जब मेरे पास ये आएगा, डिटेल्स आ जाएंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो ई बुक बनाई थी, तो वो मेरा किस तरह काम करी, वो मेरा काम कर रही है लीड मैग्नेट की तरह। तो ये चीज हमारा लैंडिंग पेज एक लीड मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। लीड मैग्नेट हम लोग लेते हैं ई बुक, okay, और एनी स्पेशल ऑफर, ठीक है, एनी स्पेशल ऑफर। और हम लोग उसको यूज करते हैं अपसेल करने के लिए। ठीक है, अपसेल करने का मतलब ये होता है कि जब भी मान लेते हैं कि आप एप्पल आईफोन खरीद रहे हो, ठीक है, और एप्पल के आईफोन जब आप परचेज कर रहे हो तभी उसी पेज पे आ जाता है कि एप्पल एयरपॉड भी खरीद लो, ठीक है, जब उस पेज पे आ जाएगी एप्पल एयरपॉड भी खरीद लो। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जब भी आप किसी भी ऑफर को देखना चाहते हो, वहां पर आपकी कुछ छोटी सी चीज अपसेल भी कर सकते हो। जब भी आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, ठीक है, जब भी आप बिग बाजार फिनिक्स या किसी भी मॉल में गए होंगे, ठीक है, किसी भी मॉल में, छोटे या बड़े, वहां पर एक चीज होती है, जब भी आप बिलिंग कराने जाते हो, ठीक है, बिलिंग कराने के वक्त में क्या होता है कि आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कुछ आइटम्स रखे रहते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, जो मान लो दिख नहीं रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों के खिलौने, वाटर बोटल्स, सॉक्स वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा आइटम, ठीक है, पर्टिकुलरली एक राउंड ऑफ फिगर का, वो चीजें रखी रहती हैं। तो वो उससे क्या होता है, जब आप बिल कटाते हो तो आपको जो माइंड है वो सोचता है कि अरे मैं इसको भी ले ही लेता हूँ, बिकॉज वो आपके बहुत करीब होती है चीज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप सेलिंग, ठीक है, मतलब कि आपको उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट वो चीज आपको तुरंत अवेलेबल है तो आपने खरीद ली, जैसे कि आपको सॉफ्ट की जरूरत नहीं बट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसेलिंग। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में भी अपसेलिंग होती है, जिससे काफी अच्छा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो अपसेलिंग समझ में आ गई, तो अपसेलिंग टाइप अपसेल इन द चैट बॉक्स, अपसेल इन द चैट बॉक्स, अपसेल। ओके,
ओके, तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है, जो मुझे लैंडिंग पेज के बारे में बतानी थी। आज हम एक कंप्लीट लैंडिंग पेज हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, एलिमेंटर का यूज करते हुए। ओके, अभी मैं जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसी एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि सभी आप सभी लोग कुछ चीजें रिलेट कर पाओ, ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। और जितने भी न्यू कमर्स हैं, आप चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, डू नॉट गेट लॉस्ट, ठीक है, और थोड़ा समय लगेगा चीजों को अगर एकदम से समझ में नहीं आ रही है, बट यू कैन रिलेट वेल, ओके। ऑल्सो गाइज, तो जो लोग नोट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट्स ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि जब भी आपको कोई की पॉइंट लगे कि ये चीज मुझे बाद में काम आएगी, ठीक है, तो उसको बस नोट कर लो और एक माइंड मैप बनाते रहो। माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। That's how our brain remember things. Okay, माइंड मैप से नर्वस सिस्टम की तरह ही हमारा मेमोरीज भी होती है। That's how we relate things. Okay, so मैं dassport.fashion.co.in के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपडेट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। अभी देखो, जनरली क्या होता है कि वर्डप्रेस के कुछ वर्जन्स होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अपने अपडेट्स वाले फील्ड में आके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वर्जन 5.4 अभी हमारा है, ठीक, 5.4.2 जब भी कोई नया वर्जन आता है तो वर्डप्रेस बोलता है कि आप इसको अपडेट कर लो, ठीक है, और ये अच्छा रहता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जो डैशबोर्ड लॉग इन करेंगे तो दे कैन दिस अपडेट्स, ओके, क्लिक ऑन दिस और ये चीज आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। प्लगइन अपडेट करना मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब मैं आता हूँ पेजेस पे, और जितने भी न्यू कमर्स है, ठीक है, ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी मदद से हम एक ब्लॉग बनाते हैं या फिर एक वेबसाइट बनाते हैं, फुल फ्लेज वेबसाइट, ओके। तो वर्डप्रेस एक, ओके, माय वॉइस इज नॉट सो क्लियर, ओके, इज माय वॉइस इज सुपर क्लियर नाउ? ओके आतिफ, ओके। सो लास्ट टाइम हमने एक पेज बनाया था, ठीक है, उस पेज का नाम था ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब देखो, कोई सा भी पेज बनेगा, पेज, ओके, आई एम यूजिंग माइंड, एक्स माइंड, ओके, ओके ऋषभ, आई एम यूजिंग एक्स माइंड, एक टूल है, ठीक है, विंडोज के लिए। इसको आप यूज कर सकते हो माइंड मैप बनाने के लिए, इट्स वेरी एफिशिएंट, ओके। तो हमने ये पेज बनाया था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने एक जो हमारा जोरोस का पेज है उसको हमने पूरा का पूरा रेप्लिकेट किया था, ठीक है। और उस पेज में मैंने कुछ अभी चेंजेस भी किए हैं, ठीक है। पेज थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है पहले से, ठीक है। ये हमारा जोरोस का पेज है, zoros.go.in, ठीक है, /training। तो अभी जो मार्केटिंग कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, जोरोस के भी, तो उसमें हम लोग इस पेज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी पैसे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आओ, हम बस बोल रहे हैं इस पेज पे आओ, ठीक है, और इस पेज पे आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम ब्लैक कलर था, मैंने इसको ब्लू कर दिया, थोड़ा और अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगी फॉर इंडिविजुअल्स, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है मेरा। अब ये मेरी हेडलाइन है, ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, आर यू रेडी फॉर न्यू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह का ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ क्या किए, आइकन्स लगा दिए, यहाँ मैंने कुछ आइकन्स लगा दिए। तो अब क्या हो रहा है, ये पेज काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है, ज्यादा चीजें और अच्छी लग रही है, देख रहे हो क्या आपको मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एनरोल फॉर इंटर्नशिप, तो ये सेम पेज हमने बनाया था, ये यहाँ पर हमारे जितने भी इंटर्नशिप की फोटोज लगी हुई है, और यहाँ कुछ एफएक्यूज है, ठीक है, जो जनरली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर मैंने रवि सर की फोटो लगा दी है कि अगर किसी को डाउट हो तो रवि सर से डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है। तो ये एक लैंडिंग पेज है। अब क्या होगा, देखो, इस लैंडिंग पेज का पहला पार्ट ये आया, ठीक है। माइंड मैप पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, क्रिएटिंग लैंडिंग पेज एलिमेंटोर, ठीक। सो मैं लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ एलिमेंटोर से, ठीक है।
पहला पार्ट हमारा आ रहा है कि पहला जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग पेज, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होगा हमारा, पहला तुम्हारा खुद हो गया कि लैंडिंग पेज, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हो गया लैंडिंग पेज इटसेल्फ, ठीक है। देखो अलग अलग वेरिएंट होते हैं पेजेस के, ठीक है, लैंडिंग पेज के, आप कुछ भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपल सा एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। पहला आता है लैंडिंग पेज, ठीक है, यूजर इस पे आएगा, ठीक है, यूजर इसको विजिट करेगा, ठीक है। हम जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन में जिसको भी करेंगे, हम इसको करेंगे और इसका यूआरएल कुछ इस तरह रहेगा, जैसे कि क्या था, द स्पॉट फैशन डॉट इन था, ओके, ठीक है, ठीक है, स्लैश ट्रेनिंग, ठीक है। ये पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आप यूआरएल चेंज कर सकते हो, इट डजंट मैटर, आज आप ऑफर लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट ये रहेगा, सबसे पहले तो यूजर हमारे पास में आएगा और इस यूआरएल पे विजिट करेगा। इस यूआरएल पे विजिट करने के बाद में अगर उसको जो भी हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, उस ऑफर का, ठीक है, उस ऑफर को अगर उसको अच्छा लगता है तो क्या करेगा, ठीक है। मैं अपने जोरोज वाले का आता हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, रियल केस स्टडी इसी को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको चीज दिखती है तो वो इसे पढ़ेगा, उसको अगर अच्छी लगेंगी, ठीक है, उसके लिए लाइक लगेंगी तो क्या करेगा, तो क्लिक करेगा एनरोल फॉर इंटर्नशिप पे। जब वो एनरोल फॉर इंटर्नशिप पे क्लिक करेगा, ठीक है, तब वो एक दूसरे पेज पे आएगा, ठीक है, जिसका यूआरएल है zoruz.co.in/enroll, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आएगा एक फॉर्म पेज पे, ठीक है, जिसका यूआरएल है, मान लेते हैं का लेते हैं, ठीक है, zoruz.co.in/enroll, ठीक है। मैंने ये एनरोल पेज है, ये दूसरा पेज मैंने इनसाइड क्रिएट किया है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो पहला यूजर इस पे आएगा पहले पेज पे, दूसरा है फॉर्म पेज पे, ठीक है। और जब इस फॉर्म को देखो, मैंने लिखा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अवर ट्रेनिंग कम इंडस्ट्री प्रोग्राम तो फिल द फॉर्म बिलो, ठीक है। अगर आप हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो क्या करोगे, आप इसको इस फॉर्म को फिल करो, ठीक है। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आपको मैं 4 ऑप्शन दिए हैं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या डिस्क्राइब करता है, आप कोई स्टूडेंट हो, आप जॉब प्रोफेशनल हो, या फिर बिजनेस ओनर हो, या फिर एक फ्रेशर हो, ठीक है, इसे स्टार्ट कर दो, ओके। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन पूछे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं 4 कैटेगरीज में कोई कॉल करेगा, ठीक है। आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा, आपको हमारे बारे में फेसबुक से पता लगा, मे बी आपने फेसबुक ऐड देखा हो, हमारा इंस्टाग्राम ऐड देखा हो, या किसी दोस्त ने बताया हो, या लिंक्डइन पे आपने देखा हो, ठीक है, या फिर कोई और अदर रीजन है, ठीक है। व्हाट इज योर रीजन टू जॉइन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका क्या रीजन है, आप प्रैक्टिकल हैंडल करना चाहते हो, सेल्फ एजुकेशन है, जनरेट सेल्स एंड रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस, ओन स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी पे हो और आप चीजें सीखना चाहते हो, आप अपनी करंट जॉब में प्रमोशन चाहते हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो, आप एक जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्या हो गया हमारे, ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये लीड फॉर्म हो गया मेरा, क्या फॉर्म हो गया, लीड जनरेशन। मैं यहाँ से लीड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से लीड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स कोई बंदा आया है, वो रियली इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, हमारे इस प्रोग्राम में, और उसको ये फिल करेगा, ठीक है। ओके गाइस, लेट टेल मी दिस, ओके, कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो क्या आप अपनी डिटेल्स वहाँ फिल करोगे, यस और नो। किसी चीज में आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो आपको समझ में आया है, will you fill your details, yes or no, okay। हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। जब भी हम लोग ऑफलाइन मार्केट में भी रहते हैं, और हमें कोई ऑफर अच्छा कोई ऑफर करता है, ठीक है, तो हम उसको अवेल करना चाहेंगे, ठीक है, और हम उसके लिए अपनी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है कि दूसरा प्रोसेस क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो हमारा ये है, ठीक है, मैं इस पे एक डिटेल वगैरह भरता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं डिटेल भरता हूँ,
रोहित मेहरा, ठीक है, रोहित मेहरा, उसका ईमेल है रोहित MEHRA @gmail.com। एक मोबाइल नंबर उसका है 90909090, ठीक है। उसको स्टूडेंट है, फेस पता लगाया है, ये करना है। इसके बाद में मैं जब ये फॉर्म फिल कर दूंगा, फॉर्म फिल करने के बाद में क्या होगा, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। आप सभी लोग यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान। मैं इस फॉर्म को मैंने फिल किया, ठीक है, मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, मैं इस पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है, मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। जिस पेज का जो URL है वो आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, इस पेज का जो URL है वो है zoroz.co.in/enroll-thank you, okay, let's thank-you, okay, so I hope आप सबको ये URL दिख रहा होगा, ठीक है, zoroz.co.in/enroll-thank-you, okay, so जब भी कोई बंदा, ठीक है, कोई भी यूजर, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद में यहाँ पर आएगा, तब मैंने लिखा है, मैंने उस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज मैं आज करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अवर ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि उसने फॉर्म फिल कर दिया है, इट मींस he and she is interested in our training कम इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब मैं कह रहा हूँ कि we have received your inquiry and we will shortly be in touch with you, ठीक है। और फिर ये जो इंक्वायरी है, ठीक है, ये ईमेल से हमारे पास में आ जाएगी, ईमेल से हमारे ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। उन ईमेल एड्रेस को फिर क्या होगा, उन ईमेल एड्रेस हम चेक करेंगे, हमारे पास में इंक्वायरी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आपको फोन आएगा, और जब फोन आएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे ब्रीफिंग दी जाएगी, ठीक है, क्या इस में क्या चार्जेस है, ठीक है, किस तरह से भी आपको हेल्प कर सकती है, सारी चीजें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज और भी मेंशन कर दी है, हम तो आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में, अगर आपको अगर कुछ असिस्टेंस अभी भी चाहिए, आप भी हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है, आप भी हमें कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल का लगा रखा है, एक व्हाट्सएप का और एक फेसबुक मैसेंजर का लगा रखा है, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने लगा रखी है, जो भी मीडियम आप यूज करना चाहो, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्राइवेसी ब्रीच पॉलिसी, ठीक है, ओके। सो ये प्रोसेस कितने लोगों को समझ में आया, 3 स्टेप प्रोसेस। Type me in the chat box. Me and me. कितने लोगों की समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। Yes, Rahul, we can add videos, anything. ओके, तो ये 3 कंपोनेंट है, ठीक है, लैंडिंग पेज के। तो एक और मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कस्टमर है, ठीक है, हमारा कस्टमर है। सबसे पहले तो भाई ये जो है क्या करेगा, ये, ठीक है, इस पेज पे आएगा, सबसे पहले कस्टमर जो है इस पेज को विजिट करेगा, पहले पेज को, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज करता हूँ,
ओके, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पर एक और अच्छा सा थोड़ा और चीजें की हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं रहा है, वो बस ये रहा है कि कस्टमर है, कस्टमर पहले इस पेज पे विजिट करेगा हमारे लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज पे जो एक्शन होगा वो हमारे फिर फॉर्म पेज पे आएगा। ये जरूरी नहीं कि हम लोग फॉर्म के लिए एक दूसरा पेज बनाए, ठीक है, हम लोग इस पहले पेज में ही एक फॉर्म डाल सकते थे। ठीक है, पहले पेज में एक फॉर्म डाल सकते थे और उससे हम वहीं पर ही चीजें फिल करा लेते। ठीक है, मगर उसका यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। ठीक है, उसका यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। इट मीन्स कि वो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, और हमारे लैंडिंग पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो भी कम, वो ज्यादा हो जाती है। हमें क्या करना है कि हमारा जो लैंडिंग पेज है वो तुरंत लोड हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने ये चीज नहीं की। ठीक है, तो कस्टमर या फिर हमारा विजिटर यूजर और हमारा विजिटर, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब टर्म्स एक दूसरे मतलब अल्टरनेटिवली यूज होते रहते हैं एक दूसरे की जगह, तो कंफ्यूज मत होना कि कस्टमर क्या कह रहा हूँ, विजिटर क्या होता है, यूजर क्या होता है। ये बस वो इंसान है जो हमारी वेबसाइट को आके विजिट करेगा। ओके, सो ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि मतलब एक चीज कंप्लीशन हो गई है। ठीक है, एक लीड हमारे पास में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग इस पेज को विजिट करेंगे, इट मींस कि उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। इस फॉर्म के बिना फिल किए हुए इस पेज को विजिट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एज ए वेबसाइट ओनर, ठीक है, मैंने तो आपको कहीं पर भी इस पेज का लिंक मैंने दिया नहीं है। ठीक है, जब मैंने इस पेज का कहीं पर लिंक भी नहीं दिया है तो ये पेज कभी भी किसी के सामने ही नहीं आएगा। ये पेज एक तरह से बैकएंड में हिडन रहेगा। ठीक है, इस पेज को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, इट मींस कि सिर्फ वही फॉर्म फिल करने के बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं फनल। ठीक है, एक फनल होती है, फनल, इस पूरे प्रोसेस का नाम एक फनल दिया गया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में। तो जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट पे आते हैं, तब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग जब पहले तो ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद में फिर वो पेमेंट वाले पेज ले आता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे मान के हमने कुछ सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर वो दूसरा पेज खुलता है। उसके बाद में जाके जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो एक पेज खुलता है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। ओके, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो वो पेज हम लोग हमेशा तो एक्सेस नहीं कर सकते कभी भी ऐसे। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है फनल। सो कितने लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया फनल का, थोड़ा सा हल्का समझ में आया। व्हाट इज ए फनल? FUNNELS, फनल, FUNNL, फनल, FUNNEL, या यस। ओके, ठीक है, अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जो इंक्वायरी यहाँ पर सबमिट हुई है, ठीक है, जो इंक्वायरी यहाँ पर सबमिट हुई है, ठीक है, उस इंक्वायरी की डिटेल्स जो है वो मेरे ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। ईमेल एड्रेस पे मान लो मैंने बैकएंड में सेट कर रखा था कि भाई जो मेरा ईमेल एड्रेस है mail@krantesh.com, ठीक है, वहां पर ये डिटेल्स मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस पे लॉगिन करूंगा। ठीक है, अब देखो ये एक ईमेल मेरे पास आया हुआ है जोरोस का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जोरोस की वेबसाइट से एक ईमेल आया मेरे पास में, और ये अभी का ईमेल है 3:36 का। ठीक है, इसमें कि मैंने टाइप किया था ना रोहित मेहरा, ये उसका ईमेल था, ये उसका मोबाइल नंबर था, ये उसके बारे में है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिससे कि मैं ये बात कर सकूं कि किस टाइप का वो किस कैटेगरी में आता है, तो मैं उससे उस हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीजें सभी को क्लियर है। टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLEAR, क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक अगर आपकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
ओके awesome. ठीक है, तो ये चीज मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से चीजें आपको समझ में आ रही है कि कैसे एक एनरोलमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, बैकएंड में। अब हम लोग आते हैं कि चीजें बिल्ड कैसे की जाए। ओके, अब देखो ये पेज तो हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, इसको और भी सुंदर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप इस पर और काम करेंगे इस पर और बना सकते हैं। मगर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, ठीक है, डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे, मैंने लैंडिंग पेज तो बना दिया था गाइस, ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, फॉर्म पेज बनाना है, फॉर्म पेज, ठीक है, जहां पर मतलब एक इंक्वायरी में ले सकूं, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं एक नया पेज बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख दूंगा इंक्वायरी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पेज नेम चूज करना आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप जो भी चाहेंगे वो पेज नेम सेट कर सकते हैं, बट फॉर माय डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ठीक है, मैं एक इंक्वायरी नाम सा रख देता हूँ, ठीक है, इसमें कि मैं एक फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है। और मेरे अगर ऑफरिंग से आप खुश हो गए, ठीक है, आपको पसंद आ रही होगी, तो आप क्या करोगे, आप इस पेज पे आओगे, यहाँ एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल कर दोगे, फिर आप थैंक यू पेज पे आ जाओगे। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिश कर दिया है, मतलब कि हमारा पेज अब लाइव हो चुका है, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं ओशन डेवलप सेटिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इस पेज में, ठीक है, इस पेज में भी अगर आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स को आप डिसेबल कर दो, टाइटल को डिसेबल कर दो, ठीक है, और फुटर को भी आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, ठीक है, और ये चीज सही रहेगी ताकि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। आप हेडर में इसका, अगर आप हेडर हटाना चाहो, नेविगेशन मेन्यू ऊपर से हटाना चाहो तो भी हटा सकते हो, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है, रखना चाहो या ना रखना चाहो, आपका जैसे भी सूटेबल करता हूँ, ठीक है। मैं इसमें भी रखता हूँ, मैं इस पेज में रखता हूँ। अब मैं इस पेज को व्यू करता हूँ, ठीक है, अब देखो ये पेज पूरा ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पेज को क्या करूंगा, इस पेज को मैं एलिमेंट और पेज बिल्डर से एडिट करूंगा, ओके। मैंने यहाँ पर एलिमेंट और पेज बिल्डर से चीजें कर दी हैं, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इट मींस कि यहाँ पर जब भी कोई बंदा आएगा उस पेज को देखने के बाद में, इट मींस he or she is interested. If you are interested in our offerings, then please fill form below. ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने इससे कंटेंट लिख दिया है। अब स्टाइल पे जाता हूँ, स्टाइल पे जाने के बाद में मैं टाइपोग्राफी पे मैं क्या करूंगा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 30 कर देता हूँ, ठीक है, 40 कर देता हूँ, ठीक है, 40, ठीक है। और इसका मैं फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर देता हूँ, नोनीतो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये कर दिया, ओके। इस करने के बाद में मैं क्या करूंगा, ठीक है, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसी के नीचे क्या लाना है, एक फॉर्म लाना है, फॉर्म, ठीक है, इसमें कि कोई अपनी डिटेल्स भरे और वो मेरे पास ईमेल पे आ जाए, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं, अगर वो वर्डप्रेस से फैमिलियर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि ये बस एक टूल है, ठीक है, जिसकी मदद से बिना कोडिंग किए अपनी वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस एक टूल है। अब मैं पेजेस पे आता हूँ, पेजेस पे नहीं, मैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स एक प्लगइन ऑलरेडी जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो ये हमने इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में होता है, ठीक है, किसी भी तरह का फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑल फॉर्म्स पे क्लिक करूंगा, ऑल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद में मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू फॉर्म पे, ऐड न्यू पे, ठीक है। इट मींस मुझे एक नया फॉर्म बनाना है। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आपको ब्लैंक फॉर्म बनाना है या फिर आप एक टेम्पलेट ले सकते हो, सिंपल क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है, आपको न्यूज़लेटर फॉर्म बनाना है, सेशन फॉर्म बनाना है। मैं बोलता हूँ मुझे सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैंने क्लिक कर दिया। अब इसने मुझे क्या कर दिया है, कुछ सिंपल सा मुझे बना के दे दिया है, सिंपल सा बना के दे दिया है। अब मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी इंसान से,
देखो यहाँ पर दिए हैं बहुत सारे फील्ड्स है, ठीक है। मैं इन फील्ड्स में इनको रीऑर्डर कर सकता हूँ, इनको चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब देखो नेम आ गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसका पूरा डिलीट मार सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ईमेल भी डिलीट मार सकते हो, पूरा ब्लैंक कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको पहला जो लाइन है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिंगल लाइन एक ही लाइन में आंसर चाहिए, अगर आपको एक ही लाइन में आंसर चाहिए तो आपको इसका यूज कीजिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेबल, इसका लेबलिंग कर देता हूँ, लिखता हूँ मेल, ठीक है। और मैं इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा, इट मींस ये फील्ड तो भरना ही पड़ेगा, तभी जाके फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज वो सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेम पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में मैं ऐड फील्ड पे दोबारा क्लिक करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कि नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिख दिया। ऐड फील्ड पे करूंगा तो उसके बाद में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल हो गया, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और फिर कुछ ड्रॉप डाउन डाल देता हूँ, मान लो कुछ आपको कुछ पूछना होगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। फेवरेट कलर, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी हमारा बिजनेस है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग टिकट बेच रहे हैं, ठीक है। टिकट बेच रहे हैं, कुछ हमारे पास वेरिएंट है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है। तो मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ कलर ऐड कर दिए, ठीक है। इसको मैं रिक्वायर कर सकता हूँ, अगर मुझे, मैं चाहूँगा कि भाई ये चीज तो फिल करो ही करो, ठीक है। फिर मैं क्लिक कर दूंगी। इसी तरह आप अलग अलग ये सारी फील्ड्स डाल सकते हो, मगर इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है गूगल डब्ल्यू की फॉर्म्स में। और वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये सब कुछ फील्ड है, ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसलिए आपको उनका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका भी मैं अल्टरनेटिव आपको बता दूंगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जितनी चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी चीजें आपको जरूरी होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो ड्रॉप डाउन ले सकते हो, आप चेक बॉक्स ले सकते हो, आप रेडियो बटन भी ले सकते हो, ठीक है। नंबर स्टार्टर ले सकते हो, ये सारी चीजें, मल्टीपल क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको बड़ा सा कुछ बड़ा सा मैसेज उनसे लेना है, मान लेते हैं कि आपको आर्टिकल सबमिट करवाना है, ठीक है, तो पैराग्राफ टेक्स्ट ले सकते हो, ये सारी चीजें है। इसके बाद में आप सेव पे क्लिक करोगे। सेव से क्या होगा कि आपकी जितनी भी आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की है अभी तक, उसे भी सेव हो जाएंगी। सेटिंग पे आते हो, ठीक है। अब भाई मैं इसको लिख देता हूँ इंक्वायरी फॉर्म, यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म, ये बस आपको जानने के लिए कौन सा फॉर्म है ये, ठीक है। इसका कोई सही नहीं, इंक्वायरी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अपने जानने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन वाला पार्ट क्या करता है, जब भी आपको कोई फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद में वो जो डेटा है, ठीक है, वो किस ईमेल पे जाए, तो बोल रहा है सेंड टू ईमेल एड्रेस कौन कौन सा हो, ठीक है। सेंड टू ईमेल एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा है hello@zeros.co.in, ठीक है। और फिर हमारे पास में है आंसर info@zeros.co.in, ठीक है। इस तरह से आप कॉमा लगा के, इस तरह से आप कॉमा लगा के सारी ईमेल एड्रेस लिख दो, ठीक है। और फिर वो जब ईमेल फिल करे, ये फॉर्म फिल करेगा, तो आपको इस इन सब ईमेल एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। आप, और जब वो जाएगी तो क्योंकि वो ईमेल की तरह जाएगी, ईमेल का क्या होता है, हमेशा एक सब्जेक्ट लाइन होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन आप चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो न्यू इंक्वायरी फ्रॉम द स्पॉट फैशन, ठीक है। तो उन्होंने बताया जाएगी कि भाई किस वेबसाइट से आया, मान लेते हैं आप अगर मल्टीपल वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर्म का फ्रॉम नेम क्या होना चाहिए, फॉर्म नेम लेते हैं द स्पॉट फैशन की तरफ से, मतलब या फिर इसको ले लेते हैं गौरव की तरफ से, ठीक है, कि गौरव, ठीक है, सबसे ओनर है गौरव प्रसाद, ठीक है। एडमिन का ईमेल क्या होना चाहिए, एडमिन का ईमेल मान लो कुछ इस तरह होता है, info@thespot.fashion.co.in, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ चीजें छेड़नी नहीं, ठीक है, जैसा वैसे रहने देना, अब वो सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंफर्मेशन का एक टाइप है। कंफर्मेशन का मतलब ये है कि जब भी वो सेंड पे क्लिक कर देगा, सेंड पे क्लिक करने के बाद में आप क्या चाहते हो कि उसको बस एक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, ठीक है, कंफर्मेशन टाइप।
आप इसको सिर्फ एक मैसेज जो में आते कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप किसी दूसरे पेज में शो कर सकते हो, आप किसी दूसरे पेज में शो कर सकते हो। वहां पर लास्ट टाइम जो मैंने जरूरत पे किया था, मैंने एक चीज की थी, मैंने उसको डायरेक्ट थैंक यू पेज पे भेज दिया था। ओके, मैंने उसको डायरेक्ट थैंक यू पेज पे भेज दिया था। तो शो पेज आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी दूसरी यूआरएल पे ही भेज सकते हो फॉर्म सबमिट करने के बाद में। ओके, तो अभी के लिए मैं सिर्फ रखता हूँ मैसेज, ठीक है। और अभी के लिए मैं सिर्फ सेव पे क्लिक कर देता हूँ और क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इंक्वायरी फॉर्म हमने बना लिया है जैसा कि हमको नीड था। ओके, how many of you have understood till here? Type me in the chat box. Me in the chat box. Okay. Arpit, Rahul, Rishabh, Lakmani has understood very well. Ashish, Ruchi, Rajal Pandey, well and good. बहुत बढ़िया गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। आप WP फॉर्म्स की मदद से आप कोई सा भी किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हो। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको कैसे हमारे पेजेस पे कहीं पर भी लगा सकते हैं। हमारा पेज क्या थे, ये हमारे पेजेस थे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, किस पेज पे जाएं, हम जा रहे थे इंक्वायरी पेज पे। ओके, तो इंक्वायरी पेज को हम लोग क्या करते हैं, एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं, ठीक है। हमें तो पेज एडिट करना है ना, हम फॉर्म लगाना, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटोर। ओके, मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम इतना लिख के छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा WP फॉर्म। देखो, WP फॉर्म एक एलिमेंट है, ठीक है। WP एक फॉर्म एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एलिमेंटोर का। और एलिमेंटोर का नहीं है ये हमने एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड किया था, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटोर, ठीक है। तो मैं इस एलिमेंट को मैं ड्रैग करूंगा, ठीक है, और यहाँ जाके इसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बगल में आप देखोगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे इनसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म आपको यहाँ शो कर रहा है, आपको कौन सा फॉर्म शो कराना है। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म शो कराना है, जो हमने इंक्वायरी फॉर्म बनाया था। ये देखो हमारा इंक्वायरी फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल, सब चीजें आ गई। अगर हम इसका टाइटल दिखाना चाहते हैं, अगर हाइड कर देंगे तो हमारा टाइटल हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम काफी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जिस तरह से भी चाहो आप, ठीक है। और आपका फॉर्म अच्छा क्रिएट हो सकता है। और उसको अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पैडिंग कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग का मतलब ये तो थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, ठीक है। स्पेस का मतलब क्या, राइट में अगर हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल, तो 2000 हो गया, ठीक है। और लेफ्ट में दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, बीच में हो गया, ठीक है। तो सेंटर में हो गया, ज्यादा अब बड़ा तो नहीं लग रहा फॉर्म, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा स्पेस हो गया, पेज पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉर्म बन गया, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्म बन गया। ओके गाइस, ये देखो, ठीक है, इट्स लुकिंग गुड। जब भी अगर आप अपना पेज अपडेट करके आपकी चीजें सही से शो ना करें, तो आप उसको हार्ड रिफ्रेश कर लो, ठीक है। हार्ड रिफ्रेश कैसे करते हैं, Ctrl+F5 से हम लोग हार्ड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पेज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई इसको फॉर्म को फिल करे तो किस पेज पे आ जाए, वो आ जाए हमारे थैंक यू पेज पे, ठीक है। जिससे कि और उस पेज को हम लोग, उसकी लिंक हमारा है, उसकी लिंक हम लोग कभी भी कहीं भी ऐसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका पर्पज ये अलग है, ठीक है। इसका पर्पज तभी मीनिंगफुल निकलेगा जब वो फॉर्म को भरेगा, ठीक है। तो एकेडमी में लिख देता हूँ, इंक्वायरी ठीक है। ये हमारा बन गया इंक्वायरी का थैंक यू पेज। अगर इसमें हमें पहले फुटर को हटाना, फुटर हटाना चाहो नहीं, इसमें आप हटाना चाहो तो हटाओ, वरना ना हटाओ तो ना हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर ब्रेड कर हटा देते हैं, टाइटल जो है टाइटल हटा देते हैं, ये मेन्यू रखो, आइटम रखो, फिर चीजें रखो, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है।
सेटिंग करने के बाद जब पब्लिश कर दोगे, ठीक है, तो ये पेज आ जाएगा। तो पूरा ब्लैंक पेज आया है, ठीक है। तो मैं इस पे जाऊंगा एडिट विद एलिमेंटोर पे, इसी पेज को मैं एडिट विद एलिमेंटोर करूंगा। अब क्या होगा, ये पेज एलिमेंटोर पेज बिल्डर से एडिट होने के लिए तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन our fashion store. You can call us for latest fashion tips. ठीक है, डन। ठीक है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहोगे। ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा अपडेट। ठीक है, ये चीज क्या होगी हमारी, ये चीज हमारा, ये हमारा आगे इंक्वायरी के थैंक यू पेज। तो हमने 3 कंपोनेंट देखे। ठीक है, देखो हमने एलिमेंटोर से पेज बिल्डर पेजेस बनाना सीखा। पहले कंपोनेंट हमारा जो लैंडिंग पेज का पहला था कि हमारा खुद एक लैंडिंग पेज ही था। ठीक है, वो इसी यूआरएल पे था, zorose.co.in/training। दूसरा क्या हुआ, जब उस पे कॉल टू एक्शन जो था, कॉल टू एक्शन क्लिक करने के बाद में जो भी लोग आए, ठीक है, वो लोग ने कहाँ क्लिक किया, उन्होंने वो उस पेज पे आ गए। जैसे कि मतलब वहाँ पर लिखा था कि लर्न मोर, साइन अप, अप्लाई नाउ, एनरोल टुडे, ठीक है, एनरोलमेंट, ठीक है, सब्सक्राइब, कुछ भी ऐसा लिखा था। ठीक है, तो जिस पेज पे वो दोबारा गए, वो पेज था क्या, उस बटन पे मतलब लिंक लगी हुई थी। इस बटन पर उन्होंने क्लिक किया है, बटन पे लिंक लगी हुई थी, और उस लिंक के जरिए वो आया कहाँ पर, zorose.co.in/enroll पे आया। ठीक है, एनरोल पे आया, फिर इंक्वायरी पे आया, कहीं पर भी इसको एनरोल पे आया। ठीक है, एनरोल पे आने के बाद में वहां पर उसने जो फॉर्म फिल कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया कहाँ पर, थैंक यू पेज पे, एनरोल थैंक यू पेज पे। ठीक है, जो यूजर होता है, ठीक है, जो यूजर होता है वो इतना ध्यान नहीं देता कि कौन सी यूआरएल पे वो कर रहा है। ठीक है, उसको बस अपना होता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन वहां से ले रहा है, बस। ठीक है, तो आपको 3 पेजेस बनाने पड़ेंगे, 3 स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक है, आपको 3 पेज बनाने पड़ेंगे, और किस तरह से आप देखो, जब आपका ये थैंक यू पेज बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे उसी डब्ल्यूपी फॉर्म्स वाले पे। ठीक है, बताना रह गई थी, आप इस अपने जो आपने फॉर्म बनाया है, हमने फॉर्म बनाया था इंक्वायरी फॉर्म वाला, आप इसको इंक्वायरी फॉर्म पे एडिट करोगे। एडिट करने के बाद में देखो यहाँ पर आओगे सेटिंग पे, सेटिंग पे कंफर्मेशन पे आओगे। कंफर्मेशन के बाद में बोल रहा है कि जब कोई फॉर्म फिल कर दो, तो फॉर्म फिल करने के बाद में क्या सिर्फ यही मैं सिर्फ दिखा दे मैसेज, मैं बोलूंगा नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, वो एक मेरा पेज विजिट करे, पेज पूरा का पूरा पेज। कौन सा पेज विजिट करे, इंक्वायरी थैंक यू वाला पेज। सेव कर दूंगा इसको। ठीक है, सेव कर दिया, ओके, सेव हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोई भी जब उसको फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है, हमारा फॉर्म को क्या था, ओके, मैं इस पेज पे आता हूं, ट्रेनिंग था। ठीक है, thespotfashion.co.in/training था। ठीक है, और अप्लाई फॉर इंटर्नशिप पे मतलब मान लो कोई क्लिक करता है। ठीक है, मैं इसको भी सही कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ एडिट एलिमेंटोर से। तो इस मैंने बटन पे क्लिक किया है, बटन पे क्लिक करने के बाद में लिंक पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी लिंक डाल सकता हूँ अपने पेज की, तो सर्च करता हूँ इंक्वायरी, पेज ना था इंक्वायरी, मैं आ गया इंक्वायरी के 2 पेज है, इंक्वायरी थैंक यू, इंक्वायरी, मैं हूँ इंक्वायरी वाले पेज पे। इस बटन पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, इस बटन पे मैं डाल देता हूँ सर्च करके। 3 बटन हमने बना दी, टोटली 3 बटन। ठीक है, बस अब फिर मैं अपडेट कर देता हूँ।
इसका मतलब हमने जो तीनों बटने बनाई है कॉल टू एक्शन वाली, हमारी कॉल टू एक्शन वाली जितनी बटने हैं, इस मीन कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि ये बटने कुछ कह रही है, कुछ एक्शन करने के लिए कह रही है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको कुछ एक्शन करने के लिए बोलेगा तो उसको बोले कॉल टू एक्शन करने के लिए वो चीज हो रही है, कह रही है हमसे, ठीक है, हमसे वो करवाना चाह रही है, ये बटन हमसे क्या करवाना चाह रही है, हम पे बोल रही है हम पे क्लिक करो और जाओ आगे बढ़ो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां पर जाऊंगा, मैं इंक्वायरी पेज पे जाऊंगा। इंक्वायरी पेज पे मैं चीजें फिल कर देता हूं, तो ठीक है, प्रांतेश सिंह इज लुकिंग टू बाय समथिंग, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देता हूं, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, जैसे कि prantesh@prantesh.com, ठीक है, ग्रीन ऑरेंज ब्लू सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, देखो तुरंत आ गया मैं। अगर आपका टेंशन सही था, ठीक है, आप तो सही ध्यान दे रहे थे, आपने देखा होगा मैंने फॉर्म फिल करने के बाद में दूसरे पेज पे आ गया। फॉर्म मैंने जैसे ही फिल किया, ठीक है, उस पर सबमिट किया, करने के बाद में क्या हुआ, मैं इस पेज पे आ गया, ठीक है। अब मैं अपना मेल चेक करता हूँ, ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस चेक करता हूँ, अगर सब कुछ सही सेटिंग थी हमारी तो चांसेस होंगे कि मेरे पास में मेल आ गया होगा, ठीक है, 10% से। मैं इसको लॉग इन करता हूँ, देखो मेल मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इस मेल कहाँ से आया मेरे पास, गौरव प्रसाद से आया है, info@thespotfashion.co.in, ठीक है। और उसमें मेरी कुछ डिटेल्स वगैरह, क्योंकि मैंने ही फॉर्म फिल किया था तो मेरी कुछ डिटेल्स है। आपका जो भी वेबसाइट का ओनर है वो क्या कर सकता है, तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे ईमेल कर सकता है, सारी चीजें, ठीक है, और अपने डेटाबेस में मुझे ऐड कर सकता है। ओके गाइस, how many of you have understood this whole concept of landing pages? Okay, Rahul has understood. Okay, बहुत बढ़िया। ओके, तो लास्ट वाले सेशन में मैंने पूरा का पूरा लैंडिंग पेज एक एक स्टेप करके मैंने पूरा बनाया था, ठीक है, एलिमेंटर को यूज करते करते वे में बनाई थी, ठीक है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया था। इस पेज को आप जो देख रहे हो यही पेज हमने बनाया था, ठीक है। और अब जो अब जो पेज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया हल्का सा। और लैंडिंग पेज में हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपको अपने ऑफर के अराउंड ही बात करनी है, ठीक है, अपनी सिंगल ऑफर के अराउंड ही बात करनी है। ये नहीं कि आप अपनी सारी सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इस चीज की भी बात कर सकता था कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं लोगों की, ठीक है, मैच चलाते हैं, नहीं, मगर ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। हमको पूरा फोकस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे करना है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट पे। तो कुछ और लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो हमने इसका देखा था, ठीक है, yourleadsguru.com, ठीक है, पूरा ये क्या करता है, बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने के लिए ये आपको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा एकदम उसी पे ही पूरा डॉक्यूमेंट पूरा बना रखा है, पूरा का पूरा लैंडिंग पेज। ओके, अब दूसरा देखते हैं। एक और वेबसाइट है स्टॉक नेशन, ठीक है। अब देखो मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ठीक है। ओके गाइस, टेल मी दिस, इज दिस अ लैंडिंग पेज और वेबसाइट? इज दिस अ लैंडिंग पेज और वेबसाइट? इज दिस अ लैंडिंग पेज और वेबसाइट? बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ देखो इन लोगों ने, यहाँ इन्होंने कितना अच्छा लैंडिंग पेज बनाया है, ठीक है। यहाँ पर चीजें करी है, ठीक है, अपना यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा है, ये हेडलाइन है इनकी, ठीक है, इस तरह से ये इनकी पूरी की पूरी हेडलाइन है, ठीक है।
देखो यहाँ पर हमने वीडियो डाल दिया है अपना, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दिया है। आप इसको भी खोल के देख सकते हो उसके बारे में। यहाँ ये पूरे के पूरे क्या है, बेनिफिट्स हैं इनके, इस सॉफ्टवेयर के पूरे के पूरे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ओके ओके, मैं आपको एक और लैंडिंग पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको चीजें और क्लियर हो सकती है। ये देखो यार, ये भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, ये भी एक लैंडिंग पेज है। वांट टू टेल योर स्टोरी, बिल्डर, ट्राई एंड चेंज द वर्ल्ड। न्यू फ्री बुक, देख रहे हो, न्यू फ्री बुक स्टोर्स 19 वर्चुअली अननोन सीक्रेट्स, देख रहे हो, पूरा का पूरा कंटेंट लिखा गया है अच्छे से, ठीक है। इस कंटेंट को लिखने के लिए इस कंटेंट को लिखना, जो जो स्किल का नाम है वो कहलाती है कॉपी राइटिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दे रखे हैं अपने यूजर्स के, ठीक है। ये देखो उन्होंने, जब मैंने क्लिक किया तो उन्होंने पूरा का पूरा ये फॉर्म खोल दिया, उन्होंने इन्होंने इसी पेज पे ये फॉर्म खोल दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी बुक को सेल आउट करना चाहते हैं यहाँ से। और इनका क्या मेथड है, ये बोल रहे हैं कि हम आपकी बुक तो शिप कर देंगे, आपको बुक तो फ्री है, मगर आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा किस चीज के लिए, शिपिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं जस्ट पे शिपिंग फनल, जस्ट पे शिपिंग फनल, ओके। तो इस तरह की चीजें आप चीजें भेज सकते हो। अगर मान लो आपने कोई बुक लिखी है और उसको सेल आउट करना है, आप कह सकते हो कि जस्ट बुक फ्री है, ठीक है, मगर जो उसकी शिपिंग है ये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स एन अमेजिंग बुक फॉर डिजिटल मार्केटर्स। देखो जैसे ही मैं पेज पे जाने पेज क्लोज करने जाने लगा, तब मुझसे ये पॉपअप आ गया, वो बोल रहा है, हे वेट, बिफोर यू गो, यू कैन आल्सो ऑर्डर एक्सप्रेस सीक्रेट फ्रॉम ब्लॉग Amazon एंड बुक्स, ठीक है। तो ये हमसे ये चाहता है कि मैं ये बुक खरीदूं, तो ये मुझे हर जगह से कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं अपने फेसबुक पे विजिट करूंगा तो वहां पर ही मुझे ऐड दिखेंगे इसके, डेफिनेटली आप भी जाके ये चीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे मैंने ये चीज खोली ना, expertSecrets.com पे जाइएगा, ठीक है, और फिर आपको जब अपना फेसबुक खोलेंगे ना, तो आपको उसका ऐड दिखेगा, डेफिनेटली ऐड दिखेगा, ठीक है। नहीं ऐड दिखेगा तो एक दो दिन में दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने स्टॉक मशीन पे विजिट किया था, आप भी जाके विजिट कीजिएगा, आपको भी तुरंत ये सारी एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, बिकॉज इन्होंने ट्रैक कर लिया है कि आप एक यूजर आए थे हमारी वेबसाइट पे, और आप हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो या दिखाते हो, ओके ओके ओके। नाउ सम if you guys have any questions, you can just unmute yourself and ask, okay, then we will take a 5-minute break, and then we will continue the session. If you guys have any doubt or so regarding this concept, okay, you can just unmute yourself and ask any one of you. Okay. Okay, Kajal.
फनल क्या होता है? फनल एक प्रोसेस होती है। फनल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने यूजर को प्रोसेस करते हो, ठीक है, मतलब उसको एक्सपीरियंस कराते हो। आप हम कभी भी किसी से बोलते नहीं कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीद लो, ठीक है, हम उसको कुछ ऑफर देते हैं, ठीक है, पहले ये परचेज करो, फिर उस पे आओ, फिर ये आओ, फिर हमारा ये जो बड़ा प्रोडक्ट है वो खरीदो, ठीक है। इसी के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग फनल बोलते हैं। आ चलो, ओके। इसी तरह हम लोग इसी तरह क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वो बोलती हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का 14 डेज का ट्रायल ले लो, ठीक है। तो वो क्या है, वो ट्रायल क्यों दे रही है भाई, क्यों कोई ट्रायल दे रहा है, ठीक है, वो इसलिए ट्रायल दे रही है बिकॉज वो चाहती हैं कि आप एक बार ट्राई करोगे, अगर आपको उसकी जरूरत लगेगी तो आप हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, जब भी कोई अपने सॉफ्टवेयर को बेचते हैं तो क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो वो चीज हमारे फनल का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास में बहुत सारी फनल्स होते हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे लैंडिंग पेजेस से ही जुड़े रहते हैं, एक लैंडिंग पेज से ही कहानी पूरी स्टार्ट होती है। टाइप्स ऑफ फनल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला है हमारा लीड मैग्नेट फनल। दूसरा है हमारा कंटेंट। कंटेंट से आप क्या करोगे, दूसरा है हमारा कंटेंट। मान लेते हैं कंटेंट का मतलब क्या है, जब भी जो भी आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो कंटेंट पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस कंटेंट में कुछ ऐसा है, ठीक है, उस कंटेंट में आपने कुछ चीजें ऐसी मेंशन कर रखी है जो कि बहुत यूजफुल है, ठीक है, और उसके बाद में आप अपने कंटेंट के थ्रू बोल रहे हो कि भाई ये चीज हमसे ले लो, ठीक है, ठीक है। तो कोई ये एक कंटेंट फनल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। थर्ड होता है हमारा फ्री जस्ट पेज शिपिंग फनल। चौथा होता है हमारा सर्वे फनल, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये सर्वे है, ठीक है, इसको फिल करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो सर्वे होता है। और पांचवा होता है वेबिनार फनल, ठीक है। वेबिनार में क्या है, देखो, अगर मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ किसी उसके लिए, मान लो वेबिनार के लिए, फ्री वेबिनार के लिए, मैं उससे बोलूंगा कि ये फ्री वेबिनार है, इसमें आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है, और आखिरी जब वेबिनार पूरा एंड हो जाएगा तब मैं आपको कुछ ऑफर करूंगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेबिनार फनल। छठवां हमारा है वर्क विद मी फनल, ओके। इस फनल में क्या है कि मैं उसमें इस फनल में मतलब मैं इस टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस में मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपने बिजनेस दुगना चौगुना करना है तो आप हमारे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सातवां है हमारा ब्रिज फनल, ठीक है। ये ब्रिज फनल जो होती है ये एफिलिएट मार्केटिंग में काम आती है, ठीक है। आठवां क्या हमारा है प्रीमियम फनल। प्रीमियम मतलब पेड सर्विस। प्रीमियम मतलब कि वो स्टार्टिंग में फ्री है, ठीक है, बट जैसे जैसे यूज करोगे, ठीक है, आप उसके हैवी यूजर बनोगे तो वो पेड हो जाएगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसमें आता है, ठीक है। नौवा हमारा है मेंबरशिप फनल, ठीक है, जहाँ पर आप किसी को बोलते हो कि इतने दिन की मेंबरशिप फ्री है, ठीक है, उसके बाद मेंबरशिप के चार्जेस पड़ेंगे, तो मेंबरशिप आप बनवा सकते हो, ठीक है, और उसके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। दसवां हमारा है चैलेंज फनल, ठीक है। तो आप चैलेंज बोल सकते हो कि कोई भी कंपटीशन बना सकते हो, ठीक है, कंपटीशन मान लो जैसे कि सर्फ एक्सेल का या फिर हॉर्लिक्स का, इन सब पे कुछ कैंपेन चलते रहते हैं, ठीक है, कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं, जैसे टिकटॉक पे कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं ना, तो वो एक तरह की ब्रांडिंग ही होती है, ठीक है। अभी ऐसे पेप्सी का या फिर
इसी तरह का एक टिकटॉक पे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये सब एक फनल के टाइप है, ठीक है, जिसमें कि आपको या तो ब्रांड के बारे में अवेयर कराते हैं या तो किसी चीज को परचेज कराने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये होती है चैलेंज फनल। ये ओके, ये ज्यादातर होती है कि आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए। ओके ओके ओके, चीजें यहाँ पे सभी चीजें क्लियर है सबको? यस और नो? Yes or no? Yes, in the chat box. Then we will take a 5-minute break, and then we will continue the session. Okay, guys. बहुत बढ़िया. Okay, now I'm going to take a 5-minute or maybe 6-minute break. Okay, then we will talk about the things that we are going to study in the next session. Okay, and also we will talk about some things with this assignment. 6-minute timer.
again. After this short break, I'm back in the chat box. If you are able to hear my voice, I will continue this session. If you are back with some energy, I'm back with energy. Are you guys able to hear my voice? I'm back. Okay, well done. Okay, so I hope you all are not feeling bored with this session. Okay, I hope you all are gaining some insightful knowledge. Okay, am I not audible, guys? Okay, am I audible, guys? Yes or no? My voice is audible or not? Okay, Jasmine. Okay, so now I will show you how to create a form like. Okay, so now I will show you how to create a forms such as this. Okay, in this form, as you can see in this form, there are multiple options, and also this form has option of uploading your photograph. Oh, so sorry, I haven't shared my screen. That's why. Okay, now it is visible, guys. So sorry, I didn't pay enough attention. Okay, so as you can see on this page, for those of you have joined this new, or maybe this page is created today itself. Okay, so from now onwards, those who have enrolled as a new intern with us, okay, intern with Zoros, they will fill this form. Okay, what they will do, they will fill this form, and the details will automatically be sent to our email addresses. Okay, जितनी भी आप डिटेल्स यहाँ पर चीजें फिल करोगे, ठीक है, अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाएगी, और आपको व्हाट्सएप पे नहीं चीजें भेजनी पड़ेगी, हमारे पास में भी पर्टिकुलर सभी का अच्छे से रिकॉर्ड रहेगा. ठीक है, यूजिंग व्हाट्सएप टू सेव रिकॉर्ड्स इज नॉट अ गुड आइडिया. ठीक है, तो ये चीजें हैं. अब देखो इस फॉर्म को कैसे बनाते हैं. ठीक है, ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को जो भी फिल करेगा वो पर्सन भी किसी एक पेज पे चला जाएगा. समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जब भी इस फॉर्म को फिल करने के बाद में मैं किसी दूसरे पेज पे आ जाऊंगा, मे बी वहां पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी वो चीज वो लिखी रहे कि नाउ यू हैव एनरोल्ड विद Zoros Learning एज एन इंटर्न, नाउ जॉइन दिस फेसबुक ग्रुप, ओके, फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड डाउट क्लैरिफिकेशन. ओके, सो आप वहां पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो. ठीक है, तो ये भी तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि जब मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट होंगे या फिर ज्यादा जब एनरोलमेंट आ रहे होंगे तो मैं सबको व्हाट्सएप ही करता रहूंगा. ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक कैंपेन चला दिया है मार्केटिंग का, मतलब ऑनलाइन एड्स मैंने चला दिए हैं. ठीक है, लोग वहां पर ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, देखेंगे क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, क्या आप लोग ऑफर कर रहे हो, उनको अच्छी लगेगी. तो ये एक ऑटोमेशन का प्रोसेस है पूरा का पूरा. ठीक है, जहां पर सारी की चीज जो चीजें बेसिक्स है, ठीक है, वो ऑलरेडी कवर हो रही है. ठीक है, अगर उसको फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो फिर हम उसको कॉल करेंगे. ठीक है, और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो वो बात का सपोर्ट का बात का पार्ट है. ठीक है, अगर जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हो जाए तो हमारा इंटरनेट का और डिजिटल मार्केटिंग का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्म कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, मैं 10 स्पॉट फैशन पे ही आ जाता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ. ठीक है, नया पेज क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ अप्लाई. ठीक है, मान लेते हैं अगर किसी यूआरएल का बहुत अच्छा रोल रहता है. ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अगर आप अप्लाई यूज करते हो तो ये यूआरएल बता रहे हैं कि हाँ इस पेज पे सिर्फ और चीजें अप्लाई होती है, फिर एनरोलमेंट प्रोसेस की चीजें होती है. फुटर को कर देता हूँ ब्रेड क्रम्स डिसेबल कर देता हूँ. ये सारी चीजें मैं रखता हूँ जैसी हैं, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ. ओके, पब्लिश करने के बाद में मैं इसको क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटोर. ठीक है, इट मींस कि नाउ आई वांट टू एडिट दिस पेज विद एलिमेंटोर. ठीक है, तो मैं एक हेडिंग में लिख देता हूँ फिल दिस फॉर्म टू रिसीव योर फ्री
तो ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। इसको मैं फॉन्ट्स वगैरह सही कर देता हूँ, अपर केस, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये अब मैं इसके नीचे एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि हम लोग मैं अपलोड इमेज का भी रखूंगा, ठीक है। इसमें जो भी वो फॉर्म को फिल करेगा, फॉर्म को फिल करने के बाद में हमारे पास में ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, तो मैं कहाँ गया, प्लगइन्स पे गया और ऐड न्यू पे क्लिक किया। इसके बाद में मैं यहाँ पर सर्च प्लगइन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम का प्लगइन है जो कि बनाया है ताकायुकी मियोशी ने, ठीक है, ताकायुकी मियोशी ने, ठीक है। तो ये और सभी जितने भी प्लगइन्स होते हैं इनके एक ऑथर होते हैं, मतलब जो कंपनी या फिर जो भी यूजर इनको बनाता है। जैसे देखो डब्ल्यूपी फॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल, तो इस पे एक्टिव लिखा हुआ है, और ये इंस्टॉल नहीं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आप भी देखिएगा कि आप जो चीज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वही चीज आप भी इंस्टॉल करो, सेम प्लगइन, बिकॉज प्लगइन्स होते ही अलग अलग फीचर्स के लिए हैं। अगर आप दूसरा कर लोगे तो मे बी उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा अब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब देखो कमेंट्स के नीचे एक ऑलरेडी एक पहले कॉन्टैक्ट का नहीं था बटन, अब आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है हमारे वर्डप्रेस में, हमारी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट में। अब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। अब क्या हो रहा है, हमारे पास में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले से बना हुआ तो पहले तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, इसका मुझे कोई यूज नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने डिलीट मार दिया। अब मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, ओके। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, एक बाय डिफॉल्ट जो है मेरे पास में, बाय डिफॉल्ट मेरे पास सारी फील्ड्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसमें सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव पे क्लिक मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं जब इसका नाम देता हूँ, मान लेते हैं ठीक है, इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रीन थोड़ा कर दिया है, यहाँ पर देखो शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट कोड का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस कोड को अपनी वेबसाइट में कहीं पर भी प्लेस करोगे, जब भी आप अपनी वेबसाइट में इस कोड को कहीं पर भी प्लेस करोगे, तो जो आपने फॉर्म बनाया है वो वहाँ पर विजुअल हो जाएगा, ये प्रोसेस कहलाता है शॉर्ट कोड का, ठीक है। शॉर्ट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। शॉर्ट कोड को मैं कॉपी कर लिया है। अब मैं द स्पॉट फैशन पे ही जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने पेज कौन सा बनाया था, अप्लाई का, ठीक है। मैं अप्लाई पे जाता हूँ, अप्लाई पे गया। अब मैं क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटोर पे, ठीक है। अब मुझे इस वेब पेज पे कहीं पर, ठीक है, जहां मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं उस शॉर्ट कोड को डाल दूंगा और वो शॉर्ट कोड क्या करेगा, मेरा जो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म है वो यहाँ पर विजुअल कर देगा। देखो मैं सर्च करूंगा एलिमेंट्स पे शॉर्ट कोड, ठीक है, SHORT शॉर्ट कोड। मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था शॉर्ट कोड, मैं फिर जाकर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट कोड मैं इसको कॉपी किया, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको एंटर किया, शॉर्ट कोड मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट कोड के पेस्ट करते ही देखो मेरा पूरा फॉर्म आ गया, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आप इस तरह से भी इस फॉर्म को यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ये पहला तरीका है, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पर एम्बेड करना, ठीक है, यहाँ पर डालना किसी भी पेज पे। आप कैसे भी डाल सकते हो, अगर आपको कोई सा भी सिस्टम कहीं पर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी। मैं इसको वैसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट मारता हूँ, शॉर्ट कोड वाला जो मैंने लिंक दिखाया था। यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट, देखो जो एसेंशियल एड-ऑन्स हमने प्लगइन डाउनलोड किया था, उसमें क्या था कि इसमें एक ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझसे बोल रहा है कि कौन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, देखो तब भी वही चीज आ गई, तब भी सेम चीज आ गई, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे स्टाइल कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल गए, पहले वाले में नहीं मिल रहे थे। पहले वाला जो मैंने शॉर्ट कोड का यूज करके अपना फॉर्म शो किया था, उसमें हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है गाइस।
थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने अगर आप ये अगर यूज करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो अच्छे से, देखो देख रहे हो, आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। फॉन्ट की मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर में कर सकते हो इसको, देखो सेंटर में हो गया, ठीक है। मार्जिन कर सकते हो, कुछ भी जिस तरह की चीजें चाहो यहाँ पर आप इसको रंग सकते हो, ठीक है। एकदम कलाकारी दिखा सकते हो जिस तरह से भी, और आपकी जिस तरह की भी थीम आपकी वेबसाइट की है, ये देखो। अब देखो ये चीज नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड रिफ्रेश, ठीक है, कंट्रोल F5, ठीक है। ब्राउजर पे कभी कभी ज्यादा काम करने के वजह से कुकीज इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है, ब्राउजर पे ही। और वो कुकीज क्या करती हैं, जो पुराना पेज लोड हुआ होता है वही फैच करके दिखती है। तो उस वजह से आपको पेज हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है, ओके। सो ये चीज समझ में है आपको, ये समझ। हाउ टू यूज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक प्लगइन मैंने यूज करना आपको बताया। ओके, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, देखो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ चीज देख रहे हो, यहाँ जो योर नेम लिखा हुआ है, योर ईमेल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट योर मैसेज, ठीक है, यही सारी की सारी लेबल्स फील्ड है। स्टार्टिंग का मैं क्या रिपीट करूँ, प्लगइन कैसे ऐड करते हो, वो चीज क्या चीज, ओके, प्लगइन ऐड करना। तो आप प्लगइन पे जाओगे, प्लगइन पे जाने के बाद में ऐड न्यू पे क्लिक करना। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च प्लगइन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप सर्च करना कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट पर सर्च करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट सर्च करोगे आपके पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का आ जाएगा। यहाँ पर ये दिखाएगी ये प्लगइन किसने बनाया है, तो आप ये इंस्टॉल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बाय टाका यूकी मियोशी, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव है इसलिए ये अभी एक्टिव नहीं, इंस्टॉल कर बटन शो नहीं कर रहा। इस तरह से आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे कमेंट्स के नीचे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट वाला। अब इसके डैशबोर्ड पे जाइए छोटे से, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए न्यू बटन मिलेगी, ऐड न्यू, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और इस फॉर्म में मान लेते हैं आपको एक्स्ट्रा फील्ड यूज करनी है, मान लेते हैं सब्जेक्ट के नीचे उसका फोन नंबर लेना चाहते हैं, तो मैं उससे बोल दूंगा टेक्स्ट, एक लाइन का है, ठीक है। तो फील्ड टाइप क्या रिक्वायर्ड है, नेम पे जाऊंगा, लिख दूंगा फोन नंबर, ठीक है, आपके हिसाब से फोन नंबर लिख दो, वैल्यू डिफॉल्ट छोड़ दो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यूज दिस टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर, तो मैं इसमें लिखता हूँ एंटर योर प्लेस होल्डर। पता होगा शायद आपको, प्लेस होल्डर वो होता है जो टेक्स्ट वाली फील्ड में ऑलरेडी चीज लिखी रहती है, उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। इंसर्ट टैग, जब मैं टैग इंसर्ट कर दूंगा तब क्या होगा, ये मेरा एक अलग बन जाएगा। जैसे कि मैं इसका लेबल ले देता हूँ, जिस तरह के इन्होंने फॉर्मेट यूज किया है ना, वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, एक सीक्वेंस है चीजों का, ये कर लिया। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई पे जाऊंगा, मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा, पेज पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखो फोन नंबर का आ गया। और फोन नंबर वाली जो फील्ड है इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटर योर फोन नंबर, तो ये हमारा कहलाता है प्लेस होल्डर। इस फॉर्म को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, इसकी मैंने जो ग्राफिकल शेप चेंज कर दी थी, इट्स नॉट सो लुकिंग नाइस, ओके, ठीक है। देख रहे हो फोन नंबर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लेस होल्डर कहलाता है, ठीक है। जाके पता लग जाए कि भाई इस प्लेस में फोन नंबर ही लिखना है, ओके, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में अब क्या करोगे, अब मेल पे आओगे, ठीक है। मेल पे आओगे तो उसमें बोला है कि जब भी कोई फॉर्म फिल करे तो इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन किसके पास में जाए, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दो। तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, और कॉमा के साथ में डाल दोगे तो बाकी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ने अपना ईमेल एड्रेस ये बाय डिफॉल्ट फैच कर लेता है कि जो एडमिन का ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया, तो मैं hello@,
forms.co.in, ये हो गया। फॉर्म नेम डाल देता हूँ, फॉर्म नेम आप कुछ भी रखो, ठीक है, क्या डाल सकते हो आप, मतलब कि किसने भेजा है, ठीक है। तो info@fashion हो गया, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो आप लिख दो, ठीक है, फर्स्ट फैशन न्यू, ठीक है। आप ये चीज रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, इसको अपनाना चाहो तो डाल सकते हो, इससे ऐसे कोई यूज नहीं होता है। अब इसके बाद में क्या है कि आपको यहाँ पर अपने मैसेज बॉडी में अपने हिसाब से आप यहाँ चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको अप्लाई एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जरूरत को दिखाता हूँ, ठीक है, जरूरत में जो मैंने फॉर्म बनाया है उसको मैं वही फॉर्म का दिखाता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। जरूरत में जो मैंने फॉर्म बनाया था एप्लीकेशन के लिए कि अगर कोई अप्लाई करता है तो फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, मैं उसका पूरा का पूरा लेआउट दिखाऊंगा, ठीक है। उस लेआउट का कोई आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के टैक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। मैं अपने जरूरत के वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे हूँ, मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँगा, ठीक है। मैंने अप्लाई का बनाया था, मैं इस पर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो आप देखो जितनी भी आपको स्क्रीन में दिख रही है ना सेटिंग्स वगैरह, ये देखो, ठीक है। पहला पहला देखो मैं आपको इसका अप्लाई भी दिखा देता हूँ, apply, ठीक है। तो इस पेज पे जब भी कोई आएगा, ठीक है, इस पेज पे देख रहे हो पूरा का पूरा योर नेम जेंडर मेल वगैरह सब, ठीक है। देखो मैंने लेबल पहला दिया है, लेबल क्या दिया मैंने, पहला लेबल है मेरा योर नेम इन ब्लॉक लेटर, ठीक है। तो इसकी कहलाती है लेबल, मैंने लेबल टैग स्टार्ट किया, लेबल टैग स्टार्ट किया। उसके बाद में उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर कौन सी फील्ड हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ ले रहे हैं एक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट मतलब एक ही लाइन में आंसर इससे आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट है और फिर स्टार कर दिया है, स्टार का मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है, और एक तुरंत यहाँ से इस पे किसी बटन पे क्लिक करोगे ना उस चीज हो जाएगी। फिर फील्ड का नाम क्या है, नेम, उस फील्ड का नाम क्या है, नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना एंटर योर नेम, प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एंटर योर नेम लिखा हुआ है, इस तरह लेबल हो गया। लेबल जेंडर, जेंडर में क्या है, देखो जेंडर में क्या है, ये दो में से कोई एक हो सकती है, मेल या फीमेल, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया क्या, ड्रॉप डाउन, ठीक है। मैंने ये यहाँ से बनाया था, लेबल जेंडर सिलेक्ट, ठीक है। एक टेक्स्ट हो गया, ईमेल यूआरएल टेलीफोन नंबर डेट टेक्स्ट एरिया ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जब सिलेक्ट करोगे तो आपके पास में जेंडर और जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, तो सारे से, ठीक है, ठीक है। इसको इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, मेल फीमेल के बगल में, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जब मैं अपना अप्लाई फॉर्म लोड करूंगा, ठीक है, अप्लाई वाला फॉर्म पेज, तो वहां पर वो ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। अभी देखो मेल फीमेल है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश मार रहा हूँ पेज को, अब देखो यहाँ पर आ गया रेदर नॉट से, मेल फीमेल रेदर नॉट से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फील्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में क्या हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ चूज करेगा इंसान तो उसके पास कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। उसके पास कैलेंडर खुल जाएगा, ये चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वो डाल रखा है कि अपलोड योर फोटोग्राफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक फाइल वाला ऑप्शन चुना था, ठीक है। फाइल चुनने से क्या हुआ कि आप कोई सी भी फाइल अपलोड कर सकते हो, मतलब मैं कौन सी फाइल अपलोड कराता हूँ, फोटोग्राफ, मुझे आपकी फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। इसकी लिमिट जो है 5 MB होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 5 MB से ज्यादा की फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। और फाइल टाइप्स में कौन कौन सी है, जेप हो सकती है, PNG हो सकती है, JPG और JPG लेवल बंद हो गया। आपकी करंट सिटी कौन सी है, आपका करंट स्टेट कौन सा है, सारी चीजें मैंने डाल दिया ऑप्शन में। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट हो, परसिंग ग्रेजुएशन हो गया, फिर PG में हो, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है, PG का मतलब कंप्लीट कर चुका है, परसिंग ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में है, ठीक है। परसिंग PG मतलब परसिंग ग्रेजुएशन में है। आपने कौन सा कोर्स किया, आपने बीटेक किया, MBA किया है, फिर कौन सा कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आपको हमारे बारे में कहाँ से पता लगा, फेसबुक ऐड से, कहीं से, फॉर्म सबमिशन डेट क्या है, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें हैं, ओके।
इस तरह से आप कोई सा भी फॉर्म बना सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। और उसके बाद में मेल में जाके देखो मैंने मेल एड्रेसेस कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ से आएगी, सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैसेज बॉडी, ठीक है। इस बॉडी में नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, नेम, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है, जैसे ये नेम, ये फील्ड, जेंडर, ईमेल, मैंने यही सारी फील्ड यहाँ पर भी यूज की है। आप थोड़ा जब इस पे बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने कुछ फाइल अटैचमेंट भी किए, मैंने ये फोटोग्राफ का टैग था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करेगा तब दो चीजें होंगी, एक तो मेल मेरे पास में आएगा और दूसरा मेल उसके पास में चला जाएगा। होता नहीं है ऐसा कि जब हम साइन अप करते हैं तो क्या होता है, एक मेल हमारे पास में आ जाता है, दूसरा कंपनी के पास चला जाएगा, भाई कंपनी को चला जाएगा कि हाँ किसने साइन अप किया है। तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, जब भी आप सब भी इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है, एक बार, और चाहेंगे कि सभी लोग फिल करें इसको, ठीक है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और इसके रिवर्स में आपके पास में भी एक मेल आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। और उस ईमेल एड्रेस में ये लिखा रहेगा, डियर, आपका नाम लिखा रहेगा, योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड, आवर टीम विल बी शॉर्टली बी इन टच विद यू, प्लीज लाइक एंड जॉइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर वी शेयर डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। फेसबुक पेज हमारा ये है, फेसबुक ग्रुप हमारा ये, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन हमारा ये है। दिस ईमेल वाज सेंट फ्रॉम ज़रूर। अगर आपको चीज ट्राई करनी है आप जाके इस यूआरएल पे जाओ, zoro.co.in/apply, ठीक है, और ये फॉर्म को फिल करो, ठीक है, और आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ओके 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 ओके, ठीक है, बस ओके। चीजें क्लियर है गाइस? टाइप यस और नो, ये समझ में आ रही है? यस और नो, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं नहीं आ रही हो, ठीक है, बट yes, you guys will get the recording in our private Facebook group. Okay. Okay, now Q&A session, guys. If you want to ask anything related to your assignments, because second assignment की deadline आज ही है 10 PM पे, और I don't know कितने लोग submit करेंगे. So you guys can unmute yourself if you guys have any doubts also. Okay, so this session is over. I have taught you about landing pages and how to build complex landing pages to build forms, how to connect them. सर Yes, Ashish. हेलो सर। सर गूगल एनालिटिक्स के साथ मैं कनेक्ट किया था वेबसाइट, लेकिन अभी तक व्यूज नहीं हुआ, शो नहीं कर रहा है जब भी कोई विजिट कर रहा है वेबसाइट पर। अरे तुमने रियल टाइम यूजर पे चेक किया था, कोई विजिट आई? नहीं आ रही है? नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा है। तुमने वो जो क्या कहते हैं कोड पेस्ट किया था अपनी वेबसाइट पे, इंसर्ट हेडर फुटर वाले पे, हाँ मैंने बताया था प्लगइन पे। तुम्हारी क्या वेबसाइट है? शायद क्या नहीं किया तो नहीं, ये सर नहीं क्या होगा, तो ऐसे नहीं आएगा ना। ओके ठीक है, वो कोड में मिल जाएगा दोबारा, ठीक है। अपने एनालिटिक वाले अकाउंट पे जाना, सेटिंग पे जाना, ठीक है। देखो कोड कैसे मिलते हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। आप एनालिटिक पे जाओगे अपने, ठीक है, मैं खोल के दिखा रहा हूँ अपने एनालिटिक अकाउंट पे जाना। इसके बाद में अभी खुलने दो हमारा, फिर यहाँ पर देखो नीचे की तरफ में एडमिन लिखा होगा, ठीक है, एडमिन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना। एडमिन पे क्लिक करने के बाद में देखो ट्रैकिंग इन्फो आ रहा है, ठीक है। यस सर। ट्रैकिंग इन्फो पे जब क्लिक करोगे और आएगा ऑप्शन ट्रैकिंग कोड, ठीक है। ट्रैकिंग कोड पे जो कोड आपको दिखेगा, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। इसी कोड को आपको पेस्ट करना है जाके वहां पर हेडर पे। मैंने आपको बोला था ना प्लगइन ऐड करना है, उसके बाद में प्लगइन की सेटिंग में जाना है, फिर हेडर पे जाके कोड पेस्ट कर देना, तब जाके आपकी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगी। ओके सर, नहीं किया था। स्टेप्स यही चीज मैं कह रहा हूँ कि नोट्स वगैरह या फिर हल्के स्टेप्स लिखते रहा करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके फाइन। Okay, anyone else have some questions regarding the internship program or so? Sir,
Yes, Arpit. सर वो जो हेडर वाला प्लगइन है वो वर्डप्रेस को होगा ना? हाँ हाँ, वर्डप्रेस के अंदर है, प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करना, ठीक है। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay guys, thank you for your valuable time. This session is over now. If you want to ask anything, you can ask just by unmuting yourself. Okay. Okay, if you do not have any question and you have fully understood everything and taken notes in your brain or have created mind maps inside your brain, that's very good. Okay, please do implement things as per the assignments. And all the newcomers, please watch my previous sessions. They are not old, they are just created in last week only. Okay, so you guys can watch those sessions, and in case you guys have any doubts related to it, I will take a recap session, okay, regarding that particular topic. Okay, but as far as I have taught things, you there won't be chance any that you guys don't understand. Okay, so this session is over now. Those who want to leave can leave with the feedback. How was this session? Okay, and yeah, that's it from my side, guys. Okay. Okay, thank you, Arpit, for devoting your time. Thank you, Ashish. Thank you, Rahul. Thank you, Sudhanshu. Thank you all for devoting your 2 hours with me and learning something great. Yeah. Okay, thank you so much, Ruchi. Thank you so much, Kajal, for devoting your time. Okay. All those who have enrolled, this was my first session. Even then, I was able to fully comprehend what it. Okay, thank you so much, Rishabh, for this feedback. I hope I tried my best in understanding, making you understand all the things. Great, guys. So you can just leave now. If you guys want to ask anything, you just can unmute yourself, because I always do take queries by this only. Okay, thank you so much, Ankita. Please do implement things on your side as well. Okay. Learn and implement. Learn, implement, and then share. 3 things you have to do.